इज जस्ट एन एडिशनल पार्ट जो हम लोग इसमें फिर से देखने वाले हैं, और कुछ नहीं, तो अपना रिवीजन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू क्या बोलते हैं डू गुड प्रैक्टिस ऑन नॉमेनक्लेचर ऑल्सो। गाइस ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो अभी जितना दिखने में तुमको आसान है ना, वो एक्चुअली आसान है, बट IUPAC नॉमेनक्लेचर का 12th बोर्ड्स में ना 2 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है। ओके, सो यू हैव टू बी थरो विद दिस। इसमें अगर कोई भी डाउट्स रह जाएंगे तो प्लीज अभी क्लियर कर लेना बच्चे, ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन आता है? 12th का भी 11th का भी 12th में आता है। बोर्ड्स में नहीं, बट एंट्रेंस के लिए यस। यस सर, एंट्रेंस के लिए नहीं, बोर्ड्स। हाँ बच्चे, सर इंग्लिश भी आएगा ना? बोर्ड्स के लिए नहीं आएगा, बोर्ड्स के लिए नहीं आएगा। क्या बोल रहे बेटा? लैंग्वेज भी आएगा ना? हाँ वो अलग रहेगा भाई, 11th का अलग, 12th का अलग, ठीक है? अभी से बोर्ड्स का टेंशन मत लो, क्या पता तो हम सब जिंदा रहे भी नहीं तुम्हारे बोर्ड्स तक, जिस तरह से कोरोना म्यूटेट कर रहा है। प्रैक्टिस करना है। हाँ बेटा, एक काम करना, मुझे अलग से कॉल करना, मैं तुमको लैंग्वेज सिखाऊंगा, ठीक है? अभी let us concentrate on classification of, my English is good, I can teach you English, don't worry. Yes, okay yes. Yes, so sir. now when I talk about hydrocarbons बेटा, जब मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूँ मैंने, yeah, so these are the three main categories, just give me a second, where is the mute button? hold on. Yes, I am here back again. Sorry, वो weekdays में मुझे calls थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसलिए I have to mute. Fine, guys. So what I was saying, these are the 3 main categories of क्या बोलते तो भी hydrocarbons, ठीक है? Saturated. I'm just, मैं थोड़ा सा तेज जाऊँगा इस portion से. ओह हेलो बॉस, अगर आप आपस में बात कर रहे हो, अगर आप सो रहे हो, अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आप गेम खेल रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, apart from paying attention to the lecture, I would request you to please mute your mics, okay? You can only unmute if you want to ask some relevant question to me, okay बच्चे? So if you are having a jalsa in your house, have it. I do not mind at all. Just mute yourselves, okay? Fine. So I'm going to rush through this part because this is something which I've already done. Now, when I talk about hydrocarbons, the main variants: saturated, unsaturated, aromatic. If you remember, last class में भी हमने discuss किया था इसके बारे में कि saturated मतलब all single bonds, unsaturated means double or triple bond, aromatic I'm talking about cyclic compounds. Aromatic है ना बेटा, cyclic compounds की बात हो रही थी ना? होता है ना? Yes. Chain, closed chain और yes, very good बेटा. यहाँ देखें, saturated hydrocarbons, these are the hydrocarbons which consist carbon to carbon single bond. This is the main definition कि कितने भी atoms हो, कितने भी molecules हो, कितना भी लंबा इसका chain हो, but carbon to carbon single bond ही रहेगा. Okay, यहाँ कहीं भी आपको carbon to carbon double bond नहीं दिखेगा कहीं पे भी. And they are going to be open chain. Open chain are also called as acyclic. ठीक है? Acyclic. Cyclic means closed. Cycle मतलब closed. Something which is originating from one point and ending on the same point. Acyclic means open, not closed. Open. Simple. That's why they are also called as acyclic compounds. Simple. अच्छा. Now if I talk about general formula for alkanes, किसी को पता है? कोई बोलेगा फटाक से? CnH2n plus 2. Excellent. CnH2n plus 2. So N is representing the number of carbon atom. Simple as that. Okay. तो N की जगह N से we can start from 1. अभी example था propane वगैरह है ना. अच्छा. Now saturated hydrocarbons in which carbon atoms are joining to form a closed chain are called as cycloalkanes. Beta, they are different from aromatic compounds and you need to take care of this. Aromatic compound में cycle मतलब जो cyclic compound है उसके अंदर double bond रहेगा. यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे you will not find any double bond. It's all saturated. It's just that it is closed chain. So these closed chain alkanes are called as cycloalkanes.
and we have a general formula for cycloalkanes which is CnH2n. okay बच्चे, CnH2n. ये किसी और का भी फॉर्मूला लगता है आपको? अल्कीन। Alkene. अच्छा, अल्कीन का भी यही है और साइक्लोअल्केन्स का भी यही है. So does that mean that cycloalkane and alkene are same? नो। No. What is तो the दो what- हाइड्रोजन कम होता है. करेक्ट, दो हाइड्रोजन कम क्यों होगा बेटा? बिकॉज यहाँ पे साइक्लिक बॉन्ड्स है. Yes. ठीक है, साइक्लिक बॉन्ड, व्हेन आई से साइक्लिक बॉन्ड मतलब एक कार्बन एटम जो स्टार्ट करता है बॉन्ड बनाना, वो एंड में जो लास्ट कार्बन एटम है वो आपस में बॉन्ड कर जाता है. बॉन्ड कर इसके लिए. देते हैं। ठीक है ना बेटा? सो दैट सर इज द सीन. प्रोपेन से होगा ना इसका? देयर इज नो, क्या बोल रहे? हाँ करेक्ट बेटा. प्रोपेन. हाँ, yes. And there is not going to be any double bond over here. So do not confuse cycloalkanes and alkenes to be one, although their general formula is same. अच्छा, now let us take example cyclopropane. ठीक है, ये देखो, अगर आप नॉर्मल प्रोपेन में देखोगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा रहता है, बट साइक्लोप्रोपेन में 2 हाइड्रोजन एटम कम रहेगा. रीजन बिकॉज इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड. cyclic. अनसैचुरेटेड की बात करते हैं. इट कंटेन्स वन और मोर कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड. सिंपल एज दैट. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और बोथ. ये देखो, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, दोनों. So such compounds will be called as unsaturated hydrocarbons. Unsaturated open chain are called as acyclic again. ठीक है, स्ट्रेट और ब्रांच चेन दोनों में से कोई भी यहाँ पे रह सकता है. Now double bond is called as carbon double is alkenes and triple bond is alkynes. See, again you will see the general formula for alkenes is the same as that of cycloalkanes, but the difference is यहाँ पे minimum 1 carbon to carbon double bond आएगा. ठीक है बेटा? Yes. H. और alkynes के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n -2. CnH2n Very good minus. ये देखो, प्रोपीन इज एग्जांपल ऑफ अल्कीन. ये देखें, अनसैचुरेटेड ओपन चेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, मिनिमम 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अल्काइन. Alkynes. CnH2n -2. I really hope nobody is having difficulty understanding this. That's why I'm rushing through this. Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. CnH2n -2. Propine. Acha. Now if you talk about aromatic hydrocarbons, they are cyclic hydrocarbons with alternate Double and Double single. bond. double and single bond Double in bond. hyperconjugation. ये बेटा hyperconjugation मैं बताया था ना, 2 बार पढ़ाया तुम लोग को. एक बार नॉर्मल पढ़ाते Yes, वक्त sir. और दूसरी बार किसी को डाउट था तो वो फिर से रिवाइज करा था. लास्ट क्लास में रिवाइज करना था, राइट? तो ये हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से ऑल्टरनेट डबल ट्रिपल बॉन्ड हो रही है. अच्छा, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ठीक है, बेंजीन एंड बेंजीन का डेरिवेटिव्स आर ऑल दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स. बेंजीन है, टोलुइन है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ Aromatics. एरोमेटिक कंपाउंड. आता नॉमेनक्लेचर बघूया. नॉमेनक्लेचर आणि आइसोमरिज्म. ये देखो, अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सिंपल एज दैट. ये देखो, all single covalent bonds, they are called as saturated compounds because all the bonds are satisfied. ये इसकी खासियत है, strong sigma carbon carbon single bonds. And because of this property, because of this saturation, because of this strong sigma bond between carbon atoms and hydrogen atoms, they are almost chemically inert at normal temperature and pressure. Room temperature and pressure पे these compounds, which compounds I'm talking about? Alkanes. These alkanes are chemically inert. Beta, that doesn't mean that they will not react. ठीक है? What did I say? They are chemically inert at normal
टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम लोग रिएक्शन में स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर एक कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर प्रॉपर कंडीशंस अब रखेंगे तो नोबल गैसेस भी रिएक्ट करता है, ये आपको 12th में पता चलेगा, ठीक है ना। Yes. Yes. अच्छा, now see this. So now पैराफिन आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, पर आगे जाके वैक्स टाइप होता है। हाँ करेक्ट, पैराफिन वैक्स करके आपने नाम नहीं सुना होगा, राइट। सो ये पैराफिन एक्चुअली व्हेन यू ट्रांसलेट द लिटरल मीनिंग ऑफ पैराफिन, इट मींस लिटिल affinity. Now affinity towards what? Affinity towards different atoms, affinity towards क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट बॉन्ड्स। बट यहाँ पे हम इनको पैराफिन इसलिए बोल रहे हैं because these are stable compounds at normal temperature pressure, they do not react. Yes. लैटिन में पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, ठीक है। अभी अपन ने एल्केन का जनरल फॉर्मूला देखा है, CnH2n+2. N is the number of carbon atoms, 2n+2 stands for the number of hydrogen atoms. सिंपल सी बातें हैं, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मोस्ट सिंपलेस्ट इज मीथेन। बेटा आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दिस बिकॉज़ आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Yes. एन की जगह 1 डाला, इथेन मिला। एन की जगह 2 डाला तो अपने को इथेन मिला, करेक्ट। इसमें एन की जगह 3 डाला तो प्रोपेन, 4 डाला ब्यूटेन एंड सो ऑन, पेंटेन। एक्सीलेंट। ये देखो 2 डिकेन, मीथेन CH4, इथेन C2H6। अब ये देखो, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किससे करेंगे हम लोग? मीथाइल ग्रुप से। ये बेटा अल्केन में से, किसी भी अल्केन में से, नॉट ओनली मीथेन, किसी भी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, किसी भी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, आपको करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप मिलेगा। मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स। नहीं बेटा, अल्काइल। बाय सेइंग मिथाइल यू आर बीइंग स्पेसिफिक, बाय सेइंग अल्काइल आई एम बीइंग इन जनरल। आपको इथाइल भी, आपके पास इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है। It simply means, what is the general formula of a alkyl group? It is CnH2n+1. नहीं, CnH2n+1. अल्केन का क्या है बेटा? CnH2n+2. अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1. So this CnH2n+1 is going to be my alkyl group, ठीक है। ये जो साइड चेन्स में भी लगता है ना बेटा अल्काइल ग्रुप, बहुत अपने को आएंगे नोमेनक्लेचर में। अभी पूरा सीरीज मिल जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन मिल जाएगा, पेंटेन मिल जाएगा। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज योर homologous series which can be represented by one general formula. एक जनरल फॉर्मूला से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, it's increasing, ठीक है। number of carbon atoms is increasing as we are adding carbon atoms, but with उसके साथ साथ और क्या हो रहा है बेटा? उसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले स्टार्टिंग के 1-2 कंपाउंड्स के लिए तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहता है, उसके बाद ये अलग अलग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म दिखाता है, ठीक है। मतलब वो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे द पिक्चर ऑफ क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर इज गोइंग टू कम, ठीक है। तो ये जो 2 कंपाउंड्स आपको आपके सामने दिख रहे हैं, these compounds and how are they classified, you all already know. I had only taught you this. उससे पहले भी आपने सीखा है obviously in 10th standard, और भी किसी ने सिखाया होगा। So I'm very sure that you are good enough at this. Yes. One carbon atom is attaching to hydrogen, अपन उसको प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। ये जरूरी है समझने ना बच्चे। When one carbon atom is attached to 2 other carbon atoms, it is called as a secondary carbon atom. ये बच्चे, ये जो मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, पर इसके क्या बोलते हैं, इसके ऊपर ना 12th में और जेई, सीईटी, नीट वगैरह सब जगह ना आपको काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो उस टाइम पे आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में बहुत कंफ्यूज जाते हो। तो बच्चे प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये अपने बेसिक्स को क्लियर रखना। कार्बन सर- एटम, हाँ बच्चे बोलो। सर मीथेन में एक ही कार्बन एटम होता है, मीथेन में एक ही कार्बन एटम है, तो वो 1 डिग्री कैसे हुआ? वो 1 डिग्री उसको बाय डिफॉल्ट पकड़ते हैं बिकॉज इट इज द प्राइमरी अल्केन, दैट्स व्हाई। बट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी इज कार्बन एटम अटैच्ड टू अदर कार्बन एटम, सिंपल एज दैट। अगर मैं कार्बन एटम के टर्म्स में बात करूं, ठीक है। एंड इफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन any compound as a single carbon atom, it will by default be called as the primary carbon atom because वो ही अकेला है ना वहां पे, इसलिए। ओके बेटा? Yes. Okay, good observation. Now here see, carbon atom is attached to 3 other carbon atoms. आ जाओ, ये अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो इस कार्बन एटम को हम कहेंगे टर्शरी। और when it is going to be attached to 4 carbon atoms, it will be called as quaternary. सर Okay बेटा? हाँ बेटा बोलो। टर्शरी और नियो है ना, CH3 नियो, उसमें डिफरेंस क्या है मतलब? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। हाँ, वो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो नियो का है, सॉरी नॉट नियो, हाँ नियो का है, नहीं आइसो का है ना। नियो तो ये है जो आपको सामने दिख रहा है अभी, है ना बेटा? यस सर, यस। आइसो में you have tertiary and neo में you have quaternary. Okay, neo बेटा, ये neo आइसो जो है ना, ये कॉमन नेम्स हैं, that's the only Yes. difference. और ये जो प्राइमरी टर्शरी क्वाटरनरी जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, ये कार्बन एटम को मैंने नाम दिया है, ठीक है, वो फॉर्मेशन का नाम था। ओके बच्चे? यस। ओके, Yes. देखो, ठीक है, you call it as neo or you call it as quaternary carbon atom. ब्यूटेन, ये देखो, टर्मिनल कार्बन एटम्स ऑलवेज अटैच टू 1 कार्बन एटम। टर्मिनल वाले को बाय डिफॉल्ट अपन प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है, दे आर ऑल प्राइमरी कार्बन एटम्स। फर्स्ट 3 अल्केन्स, मीथेन, हीथेन, प्रोपेन, ठीक है, Propane. या बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, we will get more than one structural arrangement for a particular molecule. ब्यूटेन के बाद से, ठीक है, such compounds are called as isomers and they will exhibit isomerism. Okay, abhi Yes. let us look at the isomers of butane. Butane, there are 2 possible structures, one is a continuous straight chain and the other one is a branch structure, ठीक है दोनों ब्यूटेन ही, बट दोनों का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज है। सर केमिकल फॉर्मूला फॉर बोथ द स्ट्रक्चर सेम। हाँ बेटा बोलो। सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ब्यूटेन से स्टार्ट होता है कि मीथेन से ही? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा नहीं है कि बेटा मीथेन या ब्यूटेन से स्टार्ट होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यू रिमेम्बर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो बताया था, कायरल एंड अकायरल सेंटर। यस। Yes. हाँ, Yes. ये उस पे डिपेंड करेगा बेटा। अब आप मुझे बताओ, आपके सामने 2 स्ट्रक्चर है, Chiral. एक ब्यूटेन है, एक ब्यूटेन है और एक 2 मिथाइल प्रोपेन है। यहाँ पे आपको कोई भी कार्बन एटम ऐसा दिख रहा है जो कायरल है? No. नो। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे? पीयूष। पीयूष डोकले। यस। हाँ बेटा, मुझे बताओ व्हाट इज कायरल एंड अकायरल? कायरल मींस एक कार्बन एटम हाउ? सेम ग्रुप से अटैच्ड है। ओके, कायरल मतलब एक कार्बन एटम जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। फिर अकायरल मतलब? अकायरल मतलब जो क्या बोलते हैं, सेम ग्रुप से अटैच्ड है। यस। ठीक, मिनिमम मतलब 2 ग्रुप से अटैच्ड है, ऐसा 2 सेम। यस। बोलो, आई एम वेटिंग। हेलो, एम आई कनेक्टेड? यस सर। किसी ने पूछा कुछ तो इसलिए मैं वेट किया। ओ नेटवर्क इशू। ओहो, ठीक है।
तो पीयूष यहाँ पे ब्यूटेन एंड टू मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे एक भी अपने को ये नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। कायरल। उसको मैंने बोला था ना, कायरल एटम बोलेंगे या फिर कायरल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Yes. एक भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है अपने को, सारे अकायरल हैं। कायरल। क्यों ये सारे अकायरल हैं? बिकॉज अगर मैं यहाँ देखूं, दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चारों यूनिक ग्रुप से अटैच्ड है, तो आइसोमरिज्म उसको बोलेंगे बच्चे, ठीक है। यस। बट यहाँ देखो, इनके स्ट्रक्चर की वजह से देयर इज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, जस्ट दैट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। Now, because their structures are different, their boiling point is changing. Now, can someone tell me why the boiling point of 2-methyl propane is less as compared to butane? ब्यूटेन ज्यादा स्टेबल है 2 मिथाइल प्रोपेन से। How did you मतलब why are you saying this बच्चे? उसके सर अंदर भी कॉम्प्लेक्स चेन बेटा लगा है। उसके अंदर भी सब सिंगल बॉन्ड्स है, इसके अंदर भी सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। सर इसमें मिथाइल ग्रुप से, इसमें मिथाइल ग्रुप, इसमें साइड चेन लगा हुआ है, नहीं लगा है, ब्यूटेन में नहीं लगा है, पर प्रोपेन में एक प्रोपेन साइड में चेन लगा लगा है। 2-methyl प्रोपेन में साइड चेन लगा हुआ है। Yes. साइड चेन लगने की वजह से मॉलिक्यूल वीक हो जाता है, बिकॉज मतलब इसको ना ऐसे कंसिडर करो बेटा, ठीक है। आप ना एक मतलब बच्चों की ना लाइन चल रही है, ठीक है, दे आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज इट इज इजियर टू डाइवर्ट इट क्या? नो। जब एक स्ट्रेट लाइन में बच्चे चल रहे हैं, समझदार बच्चों की मैं बात कर रहा हूं बेटा, वो लोग एक स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे हैं, तो उनको डाइवर्ट करना या फिर उनको डिस्टर्ब करना इतना आसान नहीं होगा। बट अगर वो बच्चों के ग्रुप्स बन के चल रहे हैं कि एक है, फिर 2 के बाद 3-4 एक साथ पैरेलली चल रहे हैं, फिर उसके बाद 3-4 पैरेलल, तो वो लाइन लगेगा कि बहुत हैप्पीजार्ड लगेगा। कचरा। हाँ, उसको डिस्टर्ब करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना ज्यादा आसान होगा, राइट? यस। Yes. उस तरीके से आप सिनोनिमस इसको समझ सकते हो कि ये ब्यूटेन एंड 2-methyl प्रोपेन के बीच में ये फर्क है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच स्ट्रक्चर इट इज बिकमिंग द बॉन्ड्स बिटवीन दिस क्या बोलते हैं, carbon and hydrogen, these bonds are becoming weak, and that's why it is easier for us to break the bonds. Since it is easier for us to break the bonds, the boiling point is less as compared to butane. कळलं? हो सर। यस। Yes. त्यांना आपण काय Yes. म्हणतो, चेन आयसोमर्स म्हणतो, कारण त्यांची चेन डिफरंट आहे। आता बघा पेंटेन मध्ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आहेत, 3 ठीक है। पेंटेन है, 2-methyl ब्यूटेन है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। तो one structure we have primary secondary atom carbon atoms, second structure we have primary secondary tertiary, and in the last structure we have primary and quaternary, ठीक है। तो these are also chain isomers, okay? हो सर। यस सर। ऐसा continuous chain with secondary carbon atoms, 1 tertiary and 1 quaternary. So these structural isomers are differing in the carbon chain structure, and again they will be referred to as chain isomers. आ जाओ, number of carbon atoms and how many number of chain isomers can those many molecules of carbon show? मतलब कार्बन एटम्स अगर 4 है, मतलब ब्यूटेन कितने आइसोमर्स दिखाएगा? 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, कितना दिखा रहा है? 3। 6 है तो 5, 12 है तो 355, ठीक है बेटा। यस। ये लिख लो थोड़ा, यस। जनरल नॉलेज। कौन खास रहा है भाई? कितना बेकार बच्चे यार सोसाइटी में मेरे। लेक्चर के टाइम पे हमेशा खो खो खेलेंगे, कबड्डी Yes. खेलेंगे। यस सर। चिल्ला चिल्ला के खेल रहे हैं, मुझे गुस्सा ना उठ के यस चिल्लाऊं सर, ना। आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है तुम लोग को उनका? यस। Yes. थोड़ा थोड़ा। नहीं, थप्पड़ मारना इन नालायकों को। इनको दिन भर पेट नहीं भरता, इनको रात में भी खेलना है, इनको नहीं डरना कोरोना का बिल्कुल भी। खेलने दो ना सर। सर आप हाँ। जाके बोलो उनको।
अरे नहीं यार, मैं जाके बोलूंगा तो फिर मुझे बुरा लगता है। मैं किसी को डांट कंप्लीट कर दो ना सर। मैं किसी को डांटता नहीं हूँ। पाप लगेगा। ओ भाई ओ, बस तुम लोग को तो एक ऑफ टॉपिक बोलना होता है, बस शुरू हो जाता है सर। ये देखो, ये लिखिए सबने। यस सर। Yes. ओके, Yes. लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो डोंट वरी, अपने को पेंटेन के आगे जाने का मतलब नहीं है। ठीक है, जितना पोर्शन में उतना ही दिमाग खपाओ, तुम लोग को जिंदगी में और भी काम है। बट इट इज व्हाट ऑब्वियस, यू कैन सी एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्रीज। आ जाओ, इंक्रीज। अभी ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें साइड चेन्स ऐसे लगे हुए हैं, इस तरीके से। So these groups are derived from by removing one hydrogen atom from alkane and are known as alkyl group. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस। ये भी क्या बताया था मैंने? CnH2n CnH plus Plus 1. 2 Plus 1. plus 1. CnH2n plus ठीक है, it is derived from the parent alkane. ANE निकाल करके YL डाल देने की, इसका नाम आ जाएगा alkyl. ये देखो, पेंटेट 2 methyl Alkyl. butane 2 dimethyl propane। अच्छा, so how do we nomenclate them in short? ठीक है, तो IUPAC नेमिंग रूल्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पता है ना सब लोग को? Yes. So what are the steps involved? ये लिख लेना तुम लोग, काम आएगा बेटा ये। Identify the longest continuous chain of carbon atoms. पर लिखा है। लिखा है तो बात एक लिखो। बार लिखा है पूरा। Okay, Yes, sir. then leave it. Name this longest parent carbon chain using standard यस naming सर rules. लिखा है। Add the name of each side chain before the name of the parent carbon chain. Number the parent Yes. carbon chain so that the sum of the numbers. Just revise it, na? सर वापस लिख देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वापस लिखते हैं। नहीं वापस क्यों? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाद में लिख लेना। यस This is more simpler and क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड तरीका था इसलिए। सर पीछे जाओ ना। हाँ एक मिनट सर स्क्रीनशॉट। रुको। ठीक है, मतलब Yes, एकदम sir, yes. शॉर्ट में सिंपल इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आपको आसानी होगी। कोई बात नहीं। 6 सर, 5 ही दिए इधर। खा लिया। मैंने इसको सर 10 दिया था। अरे यार तुमको 6 दिया था। 6 दिया था, 6। This is the compact version. एक मिनट guys, I am multitasking right now. Yeah, so yeah, C5H12 आ जाओ, 3 स्ट्रक्चर है। So इसके नाम हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, but let's see how many of you all can do this. कौन किसको नाम लो? नहीं, अजिंक्य my friend. यस सर। यस सर। You're such a nice guy. मेरे को ये जो पहला वाला है, इसको नाम कैसे देंगे बेटा? कौन सा पहला वाला सर? लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये डालें। हाँ ये 1 मिनट। उसके कार्बन एटम से सर। हाँ, कितना कार्बन एटम्स है इसमें? 5। हाँ, तो इसका नाम क्या आ जाएगा यूपीएससी में? पेंटेन। सिर्फ पेंटेन, कुछ रूल लगाने का जरूरत नहीं है। 1 मिनट सर। हाँ बेटा, ओके, इट्स ओके बच्चा, आई टोटली अंडरस्टैंड, वी आर एट हाउस, बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा ही आएगा, डोंट वरी। सर पेंटेन। हाँ, सिर्फ पेंटेन रहेगा बेटा, आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग यू, यू आर राइट, Yes, इट्स पेंटेन। sir. ठीक है, या फिर हम लोग Yes. इसको एन पेंटेन बोल सकते हैं क्या? नॉर्मल पेंटेन। यस यस सर। Yes, यस and पेंटेन। patent. ठीक है, बिकॉज ये Yes, स्ट्रेट sir. चेन सिंपल है, इसलिए इसको एन पेंटेन बोलेंगे। ठीक है, फाइन, ओके। अमन जी, अमन आप हो? अमन नहीं, कोई बात नहीं। गिरीश गांव में।
गांव में गाँव सर। में अब ये गांव में है तो क्या लेक्चर नहीं करेगा क्या गांव में? तो नहीं, रेंज उसके प्रॉब्लम गाँव है में सर। बोले नहीं। ना, मुंबई में लैग सर आ गया वो। सर अच्छा जब ठीक तक है नहीं ठीक है, बोलेंगे तब अच्छा तक नहीं करेंगे। ठीक है, अवॉइडेड अवॉइडेड, फाइन। दूसरा गिरीश है। अच्छा 2 गिरीश, ठीक है। दूसरे गिरीश, तुमसे कभी बात नहीं की बेटा, कौन हो तुम? गिरीश पाटिल। गिरीश, आयु देयर? गिरीश पाटिल? यस सर। गिरीश पाटिल, आप गिरीश पाटिल बोल रहे हो? यस सर। हाय बेटा, ये सेकंड वाले स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताओ ना, नाम कैसे करेंगे इसका क्विकली? मतलब ये दिस इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग ओनली रिवीजन बेटा, ये अपन पहले भी कर लिया। ये वाला है बेटा, ये वाला नहीं, ये वाला दिस वाला। आइसोपेंटेन। नहीं आईयूपीएसी नहीं, आईयूपीएसी में आईसो बेटा, आईयूपीएसी में आईसो बीसो नहीं आता, आईयूपीएसी में नंबर्स वगैरह आते हैं। अच्छा 2 व्हाट? पेंटेन। 2 पेंटेन, ओके ठीक है, नो इश्यूज। ओके गिरीश, आई विल आस्क समवन एल्स, तुम थोड़ा ध्यान देना उस पे, ठीक है? गौरव सिंह। हेलो। हाँ गौरव। हाँ। भाई इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाओ तो, इसका किसका? इसका वे। अच्छा। Okay, when I was saying in the starting lecture के 2 methyl butane. Okay, बोल दिया इसने 2 methyl butane, correct? Yes. अच्छा गिरीश, यस सर। गिरीश अभी अपन ने जो रूल्स देखे थे ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट कर लेना, और जो आप लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैं आपसे आप लोग से पूछ रहा था कि मतलब ये आप लोग को आता है ना, तो आप सबने बोला था हाँ। अच्छा ये देख बेटा, यहाँ पे रूल क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मतलब कार्बन चेन बीच में टूटना नहीं चाहिए, साइड चेन नहीं आना चाहिए, ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल लंबा चेन कौन सा दिख रहा है आपको इसमें? देखो 2 है। आई मूव द कर्सर, तो शायद आवाज ब्रेक होगा, लेकिन कर्सर पे ध्यान देना बेटा। देखो 1 2 3 4, ये एक चेन है। दूसरा चेन कौन सा है? 1 2 3, ये एक चेन है, ठीक है? लॉन्गेस्ट चेन कौन सा मिला अपने को, 3 का कि 4 का? तो ऑब्वियसली 4 का लॉन्गेस्ट चेन है। सो व्हाटएवर इज द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज गोइंग टू बी माय पेरेंट अल्केन। व्हाट डू आई मीन बाय पेरेंट अल्केन? पेरेंट अल्केन मतलब नाम लिखते वक्त उसका नाम एंड में आएगा। तो भाई यहाँ पे 4 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन है, सो एट द एंड द नेम इज गोइंग टू बी ब्यूटेन। ओके गाइस? यस सर। यस अच्छा हाँ, Yes, sir. तो Yes. इसका नाम इज गोइंग टू बी ब्यूटेन एट द एंड। नाउ वेयर इज द साइड चेन? वी कैन नॉट मिस एनीथिंग ना, जो भी है हमको सबको नाम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे अपना नाम, सरनेम, डैडी का नेम सब आता है, ऐसे ही इसका भी साइड चेन, कितना साइड चेन है वो सब अपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं साइड चेन की बात करूं तो वो ये है, और ये कौन सी है? मिथाइल 1 CH3 इज द साइड चेन ना, CH CH3। Yes, अच्छा sir. नाउ अब ये CH3 कौन से कार्बन एटम पे लगा हुआ है? इस वाले कार्बन एटम पे लगा हुआ है, इस वाले नहीं, इस वाले पे। सेकंड कार्बन एटम। नहीं Second. नहीं नहीं Second. नहीं इस वाला। नहीं, इस वाले पे। सेकंड। हट, इस वाले पे। Second. अब इसको नंबरिंग में कहां से करूंगा? 3 डिग्री इसको कार्बन एटम। नहीं इसमें ये होशियार From left. तुमको side. दुनिया की पंचायत सुने नहीं, सुनना नहीं मेरा पहला, ठीक है ना? नशा करके बैठो लेक्चर में तुम लोग। Yes. Yes. हाँ यस नाले। यस नाउ सी दिस, यस if I name it from here 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। So this carbon atom is getting number 2. If I number from here तो होगा 1 3 मिलेगा। 2 3, 2. 3 मिलेगा, ठीक है? तो अभी 2 और 3, अरे भाई जिन लोगों को पता है, आई नो यू आर ओवर एक्साइटेड टू टेल मी द आंसर, मैं उन लोग के लिए ये बता रहा हूं जिनको नहीं पता है, ठीक है? तो सब्र करो बेटा, ठीक है? अच्छा अभी सब्र का फल Yes. मिल। सेकंड और थर्ड, 2 और 3 ये नंबर्स मिले, ये 2 और 3 में से लोएस्ट नंबर जो है उस तरीके से हमको इसको नंबरिंग करना है।
So I will number it from this side and it will be called as second. Two. So second carbon atom पे methyl group attached है, तो मैं क्या लिखूंगा 2-methyl butane. Parent क्या है ऐसे भी इसका? कर सकते हैं ना, क्या नीचे से कार्बन एटम काउंटिंग कर सकते हैं। कर नीचे सकते से- हैं, बिल्कुल कर 1, सकते हैं 2, बेटा। 3, 4। हाँ, yes, 1, 2, 3, 4. This is also a continuous carbon chain. और यहाँ से गिनोगे तो ये साइड चेन हो जाएगा, ठीक है? Yes, बट sir. सर Yes. स्ट्रेट लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, as long as you are getting the minimum number for the side chain, as long as you are getting the correct क्या बोलते हैं parent alkene and the attached group, there is no issues at all. ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अब इन्हीं लाइंस पे आकांक्षा, आर यू देयर बेटा? आकांक्षा है कोई क्लास में? 12th में है? भाई 12th में, ठीक है, माय मिस्टेक। ओके, सो अब क्या बोलने का? एनी वॉलंटियर Yes. यस सर, Eh. yes। apart from the Comma normal को- people? Sir, मैं Sir, ये मैं- कौन? नॉर्मल मैंने दो लड़कियों की आवाज से निकिता. तेजस। निकिता बेटा इसका नॉमेनक्लेचर बताओ ना बच्चे प्लीज। निकिता इसका नॉमेनक्लेचर बताओ इसका। 2,2 dash dimethyl propane. 2,2 dimethyl propane. Excellent. Propane. Everybody understood what exactly is this? Yes. सर यस। Please. क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो, you said something please, then I couldn't hear you बेटा। रिपीट बोला। अच्छा, repeat. Okay, it is 2,2 dimethyl propane. Propane क्यों? इसका longest continuous carbon chain. Longest Three. ऊपर से भी, continuous side से carbon भी. chain is 3. Three. 1, 2, 3. 3 1, 3 1, 2, 2, 3. 3. अभी देखो Yes. बेटा, मैं कहीं से भी गिनूं इसका longest continuous carbon chain 3 आता है, Yes. but I will select this carbon chain as my longest carbon chain. ठीक है बच्चे? Yes. Yes. It is easier for me to number. जबरदस्ती का But टेढ़ा मेढ़ा नहीं me लेने too. का बेटा, ठीक है? देखो Yes, sir. पॉसिबिलिटीज सारी देखने का, बट जबरदस्ती को होशियारी मारने के लिए ऐसा टेढ़ा नहीं लेने का, वरना आप कभी कभी नंबरिंग गलत होता है, आपका आंसर गलत हो जाता है, यस ठीक है सर ना? यस। अच्छा, तो अभी मैं इसको इस साइड से नंबर करूं या इस साइड से नंबर करूं, दोनों जगह से उसको नंबर 2 ही मिलेगा। अभी सेकंड कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ अटैच्ड है, तो मुझे सेकंड जो पोजीशन है वो दोनों बार मेंशन करना पड़ेगा, 2,2। इसका मतलब है सेकंड कौन सा 2 पोजीशन। पहले आएगा? तुम मर जाओ ना बेटा। अभी देखो, ठीक है, सो ये जो सेकंड कार्बन एटम है, ये जो सेकंड कार्बन एटम है, ये सेकंड कार्बन एटम 2 बार हम लोग वहां पे स्पेसिफाई करेंगे, 2,2। अच्छा, मिथाइल ही है दोनों ग्रुप्स, ऐसा तो नहीं है कि एक मिथाइल है और एक इथाइल है, दोनों मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 2 का मतलब डाई, ठीक है? डाई मिथाइल क्या है ये? प्रोपेन। सो इट इज Propane. 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। Propane. एवरीबॉडी क्लियर? Yes. यस यस। अच्छा, यस सर यस। अच्छा बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं ये रूल्स के हिसाब से, जिन लोग को नहीं समझा ना बेटा, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने स्ट्रक्चर भी है, आपके सामने रूल्स भी है, आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। यस। सर यहाँ पर 6 है, क्या बोल रहे हो बेटा? 6 यहाँ पर 6 रूल्स है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो सर बेटा? वो बोल रहा है 6.6 पहले जो की पहले स्टेप्स 5 थे था, उसमें अभी 5 था, अभी 6 हो गया, वो बोल रहे हैं। अच्छा, 6 हो गया ऐसा, उसको मैंने तोड़ दिया है बीच में, इसलिए ठीक है उसको। अरे भाई, ये स्टेप्स 6 हो, 12 हो, 2000 हो, अपने को समझ में आया ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? यस ओके, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से हमने लॉन्गेस्ट चेन लिया है, देखो बेटा। स्ट्रक्चर वन में कोई ब्रांच नहीं है,
तो अपन उसका नाम पेंटेनिस बोला। स्ट्रक्चर 2 में ब्रांच है, अतः वो ब्रांच किधर है? ठीक है, साइड चेन का नाम बिफोर द रूट चेन के पहले आएगा, पेरेंट अल्केन के पहले आएगा। तो अब उनको मिथाइल ऐड करना है, मिथाइल बिफोर ब्यूटेन, and here also we will add methyl. अतः number the parent carbon chain so that the number assigned to each side group will be the least. अतः numbering केलं तर second carbon atom is the least number. ये देखो alkyl group कहाँ पे है? second carbon atom पे है, and in structure 3 again at the second carbon atom. सर इसे लोवेस्ट लोकल कंट्रोल बोलते हैं। Yes, this is also called as the lowest locant rule. Correct, absolutely correct. Achha. Then number and name the side chains before the name of the parent carbon atom. Chain sir. तो यहाँ पे 2 मिथाइल हो जाएगा, तो इसके साथ सेकेंड वाले का नाम पूरा हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा ब्यूटेन। सेकेंड थर्ड वाले का देखो, हाँ आइंस्टाइन। अभी सेकेंड पे ना 2 मिथाइल ग्रुप्स है ऑन द सेम कार्बन एटम, सो वी विल टेक द 6th स्टेप। इसमें 6th स्टेप इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे थर्ड एक्सप्लेन करना था। सो वी विल यूज डाई और ट्राई, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल, हियर इट इज डाई। सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बच्चे, जिन लोगों को नहीं समझा है, हैव यू गाइस अंडरस्टूड हु डिड नॉट अंडरस्टैंड प्रीवियसली? सर ऊपर sir, समझा। सर ऊपर इथाइल होता और नीचे मिथाइल होता, तो 2 इथाइल मिथाइल आएगा। 2,2 इथाइल मिथाइल डाई इथाइल मिथाइल प्रोपेन होता, बट वो अगर इथाइल आ जाएगा ना बेटा, तो एक्चुअली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपना लॉन्गेस्ट चेन अपना बदल जाएगा, बिकॉज इथाइल इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, वैसे केसेस आपको देखेंगे आगे। अभी के लिए या यू आर राइट, जो तुम बोल रहे हो, अगर इथाइल और मिथाइल साथ में आएगा तो अल्फाबेटिकली जो पहला आता है लेटर उसको अपने को कंसिडर करने का। ये मैंने ये सब रूल्स बताया आप लोग को? यस सर, पता है। यस सर, रिवीजन करवा। अच्छा, यस सर, बताया। हाँ, वेरी गुड। Okay, so this is important for us to write down the correct IUPAC names. आता IUPAC नेम DLA रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर भी बनाते आना चाहिए अपने को। ठीक है, so these are the rules for drawing the structure from the molecular formula. ये लिखा है तुम लोग को? नो सर, नहीं लिखा है। अच्छा, you have to draw the chain of carbon atoms from molecular formula, number the carbon atoms within the parent carbon chain, and attach the subsequent alkyl groups given as prefix in the name to the carbon atoms, and satisfy the remaining valence of carbon atom by putting the required numbers of hydrogen atoms. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जैसा तुमको ठीक लगे। Done. I see. I do No, sir. understand. I do understand. No done. It is me teaching on the board is more comfortable for most of you guys. I Yes, understand sir. that. Yes. I know that. Yes. I know that. Even Yes. I feel comfortable that way only. But अभी कैसा है, थोड़ा मेरा तबीयत is not that great ना, तो इसीलिए थोड़ा बैठ करके without writing सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा, जैसे I'll be fine, I'll switch on to the board. Okay? Okay, सर sir. बाहर भी टीच कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? चलो लिख लिया? नो डन। ये स्क्रीनशॉट लो ना, बाद में लिखो ना रे। Yes, sir. Done. Done. उस सर बहाने से। नहीं लिखा है, भूल जाता हूँ लिखने में। अच्छा ठीक है, लिख ले मेरे बच्चे, लिख ले, लिख। I'm very glad that people are sincere. I don't know तुम लिखने के लिए ये कर रहे हो या फिर वेस्ट करने के टाइम, but I'm happy that you are writing. मेरे दोस्त कीड़े मकोड़े की फोटोज बनाते हैं।
Done, sir. Done, guys. I was not on mute. Yes, sir. Yes. No, Sir, Chalo. you no. were not on mute. No, I am sorry. Let us go ahead. not done. Yes not and done. yes. Yes. Chalo. Ethyl 2,2 Sir, wait. dimethyl pentane. People, try this. Somebody try it on your book and जब मैं बोलूंगा तब आप मेरे को अपना वीडियो ऑन करके ये दिखाना, ठीक है? सब लोग ट्राई करो. Done? No. Wait, sir. Wait, sir, wait. Yeah. Sir, please wait. बोल. नाले इज्जत Yes, ही sir, नहीं कुछ. please wait, Done, please. sir. Done. Wait, sir. Wait. Done. Someone is telling done. Who is confident enough Yes, to? done. Who is confident enough to show it on the camera? Wrong, wrong. कोई बात नहीं. मैं आप दिखाओगे? yes, sir. ओके, एक एक करके दिखाना. आए बहुत सारा sir, वीडियो आए. चालू होएगा तो प्रॉब्लम. आए sir. आई कैन सी आए. शरण. इधर है. हाँ बेटा, बस अपना वो पेज दिखा दो कैमरे के सामने. ये एक एक करके दिखाना. ये शुभम भाई. ओके इधर. ओके. हाँ, आई कैन सी इट. ओके, होल्ड ऑन. Sir, right. डाइमिथाइल पेंटेन इज द कार्बन पेरेंट कार्बन एटम. तो लॉन्गेस्ट चेन 5 होना चाहिए, ठीक है? Sir, right. 1 2 3 4 5 थर्ड, हाँ करेक्ट बेटा. थर्ड पोजीशन के ऊपर इथाइल, ठीक है? इथाइल. और सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल होना चाहिए. Sir, right. हाँ भाई. मेरा भी. Sharon and Shubham, very good beta. I'm so proud of your confidence. I really like students like you. But very good beta, very good. Others, you अब आप बंद कर सकते हो कैमरा. Good बच्चे, good. ठीक, Sharon बंद कर लो बच्चे कैमरा. हाँ. ये ओके. हाँ. चलो. Others, did you see? Why it's always Shubham and always Sharon and a limited few others to answer? सर मैं दिखा रही थी. हाँ नहीं आप बेटा. हाँ मैं जानता हूँ. Yes. So see this. Let's go formula wise. ठीक है? Sir, सबसे कम 3 मिथाइल को देना चाहिए ना? क्या मतलब? नहीं देखते सबसे कम नंबरिंग. सबसे कम नंबरिंग ऐसी बात नहीं है कि सबसे हाँ, कम समझा. नंबर. अभी डाइमिथाइल है तो हैवी चेन उसको वो हो गया. तो हैवीएस्ट चेन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. वो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है? लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट. अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखो बेटा सब लोग, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? पेंटेन है. तो सबसे पहले 5 कार्बन एटम बना देने की, वो बना दिया अपन ने, ठीक है? हाँ. अच्छा, नंबर द कार्बन एटम्स विद द पेरेंट कार्बन चेन. नंबर कर दिया 1 2 3 4 5. सिंपल. अच्छा, अब फ्रॉम द नेम अपने को अटैच करने का है इथाइल ग्रुप ऑन द थर्ड कार्बन एटम. तो इधर अटैच है. इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. एंड 2 टू द सेकंड कार्बन एटम. तो 2 मिथाइल इधर हो गया. और रिमेनिंग जो रहेगा वो किससे करना है बेटा? हाइड्रोजन से, ठीक है? See, every carbon atom should satisfy the valency of 4. I'm sorry, it just went off. ठीक है? So each carbon atom has to valency. ये है इसका स्ट्रक्चर. तो जो लोग नहीं ड्रॉ कर पाए थे वो ये ड्रॉ करो. कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछो कि ये कैसे हुआ कि वो कैसे हुआ. सर मैंने उस तरफ किया. नंबरिंग नहीं किया तो चलेगा. कर देना ना बेटा. इट इज इजियर फॉर अस ना टू अंडरस्टैंड. एंड सी, the more easier you make the paper checking for the examiner, the better marks you get. Yes. हाँ जी, ठीक है. सबने बना लिया ये? सर. Yes. सर हम इसको टेढ़ा भी बना सकते हैं ना? मेरा क्या बनाएगा बेटा इसमें? टेढ़ा उल्टा. टेढ़ा. अच्छा, टेढ़ा मतलब स्टैंडिंग? No. नहीं. C2H ये पर ऊपर 90 डिग्री बना. हाँ वही ना बेटा, वर्टिकल ना. सर. दोनों भी बना सकते हो. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री. but I would suggest बेटा कि do not make it complicated. उसको अपने को आदत हॉरिजॉन्टल का है, हॉरिजॉन्टल ही रखो. बिकॉज आप वर्टिकल वगैरह करने जाओगे, 90 डिग्री करने जाओगे तो कंफ्यूजन होता है और फिर रॉन्ग हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कीप इट सिंपल. आपको मार्क्स इसमें भी मिलना है, उसमें भी मिलना है. हाँ बेटा बोलो.
सर वो 3 इथाइल -2 आया ना बाद में, हाँ हाँ, वो -2 का मतलब नहीं समझा मेरे को, डैश कंफ्यूज हो टू, रहा हूँ। अच्छा डैश टू का मतलब क्या बेटा कि थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल है, डैश 2,2 मतलब 2,2 डैश मतलब दिस रूल सेज दैट लेटर और नंबर के बीच में हमेशा डैश आना चाहिए। अब इथाइल क्या है, लेटर्स है, अल्फाबेट्स है ना, और 2 का यस, नंबर के बीच में डैश आएगा, लेटर और नंबर के बीच में dash आएगा। वॉइस इज ब्रेकिंग सर। ओके आई एम सॉरी, लेटर और नंबर के बीच में डैश आना चाहिए, तो इथाइल sir. और इसके बीच में डैश आया, तो 2,2 सेकंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, ठीक है, समझे बालको? जी अच्छा अच्छा, ठीक है। यस यस तो अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, बिकॉज 7:30 बजे मेरा कहीं और कमिटमेंट है, सो आई विल हैव टू फुलफिल दैट। 10 o'clock. ठीक है बच्चे, हाँ अपना केदार मुझे